Good morning, students. In the last class, we were studying the what are the different keys or challenges in the rural development. We have also completed a topic that is credit and marketing in rural areas. That is rural area credit. Next is classification of rural credit needs, which is classified into two categories. According to time and according to purpose. Okay, in the according to time we have classified into three, that is short term credit, medium term credit and long term credit. And according to purpose we have classified the rural credit into two, that is productive purpose and the non productive purpose. Why the any rural people has taken the different kind of credit? So it is only because of the they have some increase, they have to increase some their agricultural productivity, they have to purchase the different kind of seeds, machines, fertilizers, etc. And they can also some kind of different unproductive purpose, like to meet their social obligations, social needs. For example, if they have to perform a different religious ceremonies, marriages, etc. Okay, so that's why the rural people has taken the different kind of credit. Okay, and we have also start a topic what are the different sources of the rural credit, कि जो रूरल क्रेडिट है उसके डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं। कि अभी तो बात हो गई कि अभी हमें किसी भी रूरल जो पीपल हैं उन्हें नीड है फंड की, तो वो सोर्स कहाँ से, वो है कहाँ से कि वो लोग फंड को लेकर आएंगे। सो वी हैव स्टडीड दैट द NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development, was set up in 1982. This bank is the apex bank in the basically in the rural financial system. Rural financial system में NABARD को क्या बोलते हैं हम लोग, apex bank बोलते हैं. Okay, so we have completed this. Now we have seen, start with the other, that the next is with modernization and upgradation of agriculture, the requirement of the credit has increased tremendously. Means मॉडर्नाइजेशन होने के साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर है उसमें भी अपग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था कि इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं था, लोग जो भी डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे थे वही चल रहा था। बट विद द मॉडर्नाइजेशन और जो एग्रीकल्चर में क्या हो गया, अपग्रेडेशन हो गया है। पीपल नो वेरी वेल दैट द डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, different kinds of machines, tools, etc. So the requirement of credit has also increased. कि अब जो क्रेडिट की भी रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। पहले लोगों को नहीं पता था, तो दे डोंट नीड मच अमाउंट ऑफ फंड्स टू इन्वेस्ट देयर to investing in their agriculture. But with the modernization and upgradation of agriculture, the requirement of credit has also been increased. So the sources of the rural credit can classified as the non-institutional sources and the institutional sources. We talk about there are the people need the different kind of sources of credit. So there are two types of sources, that is institutional sources and the next one is non-institutional sources. Okay, so first one is, let's talk about the what is non-institutional sources. It is also known as informal sector. You know very well, you have also studied in the your social science, that is formal sector and informal sector. So non-institutional sources are also called the informal sector. So these are the traditional sources of the rural credit in India. Okay, these sources include money lenders, relative, trenders, commission agents, landlords, friends, etc. So out of all the above sources,
money lenders have been advancing a major share of rural credit requirement. They advanced nearly 94% of the total credit requirement in the year 1951 to 52. Major problem in taking loans from the money lenders are they charges very high rate of interest and thus exploit farmers. B is they required land on failure to pay back the loan, and third one is they manipulate the accounts. Okay, what we see here that there are traditional source of rural credit in India. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हैं? ये ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, ठीक है, कि रूरल क्रेडिट में इंडिया में अगर रूरल में क्रेडिट किसी को लेना है तो वो लोग ट्रेडिशनल सोर्स को ही अडॉप्ट करते थे. वो लोग बैंक की ओर नहीं जाते थे कि वो जाएंगे बैंक से लेकर आएंगे. वो लोग क्या है, बेसिकली जो मनी लेंडर्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं, और एज वेल एज जो डिफरेंट रिलेटिव्स होते हैं, वो उन्हीं के ही थ्रू आउट क्या करते हैं, मनी का अरेंजमेंट करते हैं. सो दीज सोर्सेज इंक्लूड्स दी मनी लेंडर्स. ओके, जो मनी लेंडर्स होते हैं जो मनी प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट रिलेटिव्स जो होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं, यही सब मनी प्रोवाइड करने का. कमीशन एजेंट्स की वो कमीशन लेके क्या करते हैं, अगर आपको 1000 रुपीज़ चाहिए तो वो आपसे क्या करेंगे, उसमें से भी वो कमीशन ले लेंगे. तो ये सारे क्या हैं, लैंडलॉर्ड हो गए कि कोई लैंडलॉर्ड है या फ्रेंड्स है. तो दीज ऑल आर दी सम ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, की ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं क्रेडिट लेने के. ओके, सो आउट ऑफ ऑल द अबव सोर्सेज मनी लेंडर हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ रूरल क्रेडिट रिक्वायरमेंट. ठीक है, इन सारे सोर्सेज में मोस्टली द पीपल विल प्रेफर द मनी लेंडर्स. ओके, लोग क्या करते थे, मनी लेंडर को ही प्रेफर करते थे. बिकॉज अगर कोई फ्रेंड के पास जा रहा है या लैंडलॉर्ड के पास जा रहा है तो वो लोग क्या है, हो सकता है इन दैट केस उनके पास भी मनी ना हो, और मनी लेंडर तो वो यही काम ही कर रहे हैं, तो वो ईजिली क्या करते हैं, अवेल करा देते हैं मनी को. सो दे एडवांस नियरली 94% ऑफ द रूरल टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन द ईयर. मीन्स ट्रेडिशनल सोर्सेज में जो मनी लेंडर्स है वो पूरा 94% लोग पीपल विल प्रेफर टू गेट द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स. वो मनी लेंडर्स से ही मनी को लेते हैं. इन द ईयर व्हेन वी टॉक अबाउट द 1951 टू 52, 1951 से 52 में हम देखते हैं तो 94% जो टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट थी वो किसके थ्रू हुई, मनी लेंडर्स के थ्रू हुई. ओके, मेजर प्रॉब्लम इन टेकिंग लोन फ्रॉम दी मनी लेंडर्स आर, जो डिफरेंट मेजर प्रॉब्लम्स है which are occurring to getting the loan from the money lenders are they charge very high rate of interest and thus exploit farmers. वो क्या करते थे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लेते थे वो क्या होता था, बहुत हाईली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था. अगर वो 1000 उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अराउंड 1500, 2000, 3000 तक उनका क्या होता था, एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते थे. तो इससे क्या होते थे, जो भी सारे फार्मर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते थे. नेक्स्ट वन इज दे एक्वायर लैंड ऑन फेलियर टू पे बैक द लोन. अगर फार्मर क्या कर रहा है, वो लोन को पे बैक करने में कैपेबल नहीं है तो वो उनकी लैंड ले लेते थे. मीन्स क्या है कि ऐसे बोल दिया कि किसी ने मनी लिया, बट कोई फार्मर ने मनी लिया, बट he or she is not able to pay back all the amount. In that case the money lender acquire land of that farmer. उस फार्मर की वो क्या करता था, लैंड ही ले लेता था. दे मैनिपुलेट द अकाउंट ऑल्सो. मीन्स सारे जो भी फार्मर्स होते थे दे आर नॉट एजुकेटेड और लिटरेट, सो दैट जो ईज़िली मनी लेंडर क्या आते थे, उनके जो अकाउंट होते थे कि उन्होंने कितना मनी लिया है उसको भी वो क्या कर देते थे, मैनिपुलेट कर लेते थे. फॉर एग्जांपल अगर वो 1000 लिया है तो उसको वो शो कर देंगे 1100 या 1200. तो उनको तो नॉलेज है नहीं, उनको तो नोन भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अगर फ़ंड ले लेते तो याद भी नहीं रहता है, तो वो क्या करते थे, उनके अकाउंट को भी मैनिपुलेट कर देते थे. ओके, सो दीज ऑल आर दी सम प्रॉब्लम्स विच इज़ रिलेटेड टू दी money lenders. Okay, next is traders and the commission agents. Okay, they provide, traders and commission agents provide advance
credit to the farmers on the mortgage of crop. The problem of taking loans from the trader and commission agents are they charge high rate of interest. They force farmers to sell their crop to them at low prices. Okay, so जो different traders और commission agent होते थे, they provide the credit for to the farmers on the mortgage of crop, कि वो जो भी क्रॉप को क्या कर देते थे, सारे फार्मर्स मॉर्गेज कर देते थे किसके पास, ये ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट के पास. उसके अगेंस्ट में क्या होता था, ये सारे ट्रेडर्स कमीशन एजेंट उनको फंड प्रोवाइड करते थे. ओके, सो द प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स आर देयर आर ऑल्सो सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दी ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स आर दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे. एंड दे फोर्स फार्मर टू सेल देयर क्रॉप टू देम एट लो प्राइस. और वो फार्मर्स को क्या करते थे, पुश करते थे, फोर्स करते थे कि जो भी उनकी क्रॉप है उसको लो प्राइस में सोल्ड करो उनको. तो दीज ऑल आर दी exploitation of the traders, commission agents, money lenders, which is डायरेक्टली टू दी फार्मर्स. फार्मर्स को क्या था, बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ता था कि वो सारे क्या थे, मनी लेंडर्स एज वेल एज ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट क्या करते थे, उनको फोर्सफुली कहते थे कि आपको क्या करना है, आप मेरे को सारे जो भी क्रॉप है उसको सोल्ड आउट कर दो विद दी लो प्राइस पे सारे सोल्ड आउट कर दो. ओके, नेक्स्ट इज लैंडलॉर्ड्स. Landlords also become an important source of granting rural credit. Some of the problems faced by the farmers are landlord charges high rate of interest. They exploit small farmers by manipulating account. Okay, so landlord also play very important role for the granting the rural credit. Rural credit को grant करने के लिए they also play very important role. Some of the problem faced by the farmers are कि जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे. एंड दे एक्सप्लॉइट द स्मॉल फार्मर्स बाय मैनिपुलेटिंग अकाउंट. उनके अकाउंट को, फार्मर्स के अकाउंट को मैनिपुलेट करके क्या करते थे, वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे. ओके, नेक्स्ट वन इज रिलेटिव्स. पीपल ऑल्सो प्रेफर देयर रिलेटिव्स टू टेक द फंड्स फ्रॉम देम ऑल्सो. रिलेटिव टू प्ले an important role in granting credit to the farmers. These normally carry no interest and money in return as per the requirement of the loan provided or the after the harvest. Okay, so relative क्या थे, ये भी बहुत important role play करते थे for granting credit to the farmers. These normally carry no interest. वो लोग क्या करते थे, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते थे. एंड मनी इज़ रिटर्न एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन प्रोवाइडर. और मनी को क्या करता, रिटर्न करना होता था एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन प्रोवाइडर, कि जो लोन प्रोवाइडर है वो उसके अकॉर्डिंग ही उनको मनी पेड करना पड़ता था. अगर वो आज दिया है, 2 दिन बाद बोलता है कि मेरे को पैसा दो, तो उनको देना पड़ेगा. और आफ्टर दी हार्वेस्ट, जब सारा हार्वेस्टिंग होने के बाद ही क्या करते थे, अगर वो फंड मांग लेता था तो अकॉर्डिंग टू डैट, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव उनको क्या करना पड़ता, रिक्वायरमेंट को पेड करना पड़ता था, मनी को पेड करना पड़ता था. ठीक है, लोन प्रोवाइडर जो दे रहा है अब उसी के अकॉर्डिंग उनको चलना है. मीन्स कोई रिलेटिव आज देता है, वो आफ्टर 4 डेज़ कह रहा है कि मेरे को फंड चाहिए, मेरे को मनी चाहिए, तो जिसने भी फार्मर ने फंड लिया है, तो वो उसको उसी के अकॉर्डिंग ही, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारे जो भी उसके फंड्स को प्रोवाइड करना है वो वैसे ही काम करेगा. ओके, so these all are the non-institutional sources for the rural credit, in which we have studied the different traditional sources of the rural credit. Basically in India, these all are the money lenders, traders and commission agents, landlord and relative. The main problem which occurred by studying all these, that the one thing is same, that all the people charges high rate of interest from the farmers, as well as they also manipulate the account of the farmers, and they can also force the farmers to sell their crop at very low prices. So these all are the problems which is basically related to the non-institutional sources.
okay, and it is also called the informal sector. Now the next one is institutional sources, okay, it is also called the formal sector. So the institutional structure of the rural banking today consists of a multi-agency institution, namely commercial banks, regional rural banks, cooperative and land development banks. Cooperative Credit Society was established in 1904, 1904, which played a major role in shifting the role of informal sector to formal sector to provide rural credit. A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of the rural credit. Also, nationalization of the commercial banks in July 1969 expanded the role of formal sector. In 1986, more commercial banks were nationalized, which further helped in expanding the role of institutional sources to grant credit. Okay, so in the institutional sources, in this institutional sources, all those sources comes which is already governed by the government of India की डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही क्या होंगे, ये सारे गवर्नड होंगे. इसमें क्या आएंगे, सारे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, ऑल दी कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रीजनल रूरल banks. Okay, ये लोग क्या, land development banks also. So these all are provide the different kinds of credit to the basically in the rural areas. So these all are the rural credit which is provided to the farmers. Okay, so the institutional structure of the rural banking today consists of the multi agency institution. Okay, so अभी जो है institutional structure जो है, जिस institutions के थ्रू हम लोग रूरल बैंकिंग के लिए फ़ंड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या है, मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन. मीन्स एक एजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं कि बस ये कमर्शियल बैंक ही क्या करेंगे, फ़ंड प्रोवाइड करेंगे. इट टॉक्स अबाउट दी मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस इन विच कमर्शियल बैंक्स आएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स आएंगे. दीज ऑल आर बी कॉल्ड, कि ये जो बेसिकली क्या होते हैं, रूरल एरियाज़ में होते होंगे. तो इसमें आएंगे कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आएंगी. एज यू ऑलरेडी नो वेरी वेल दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो फंड प्रोवाइड करती हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए होती हैं. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. ओके, सो इन द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज these multi-agency institutions are come in which commercial bank, regional rural banks, cooperative banks, land development banks. Okay, so cooperative credit society was established in 1904. मीन जो cooperative credit society है वो कब established हुई थी, 1904 में, which played a major role in shifting the role of informal sector to formal sector. इसका मेजर रोल इसने ये प्ले किया था कि इन जो लोग पीपल प्रेफर दी टेकिंग द लोन और क्रेडिट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, इट शिफ्टेड पीपल फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर. अब लोग क्या हैं, इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर की ओर शिफ्ट होंगे, एंड दे हैव टेकन दी क्रेडिट फ्रॉम दी दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस. Okay, so a major change occurred after 1969. Okay, after 1969 we see that there are major changes occurred in which India adopted a social banking and multi agency approach. इंडिया ने क्या किया था, सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच को अडॉप्ट किया था, जिसमें क्या था कि बैंकिंग फैसिलिटी क्या है, इट इज़ फॉर ऑल दी पीपल एंड मल्टी एजेंसी. मीन्स अभी तक क्या था कि कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं थी, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था कि वो फंड प्रोवाइड करे. बट अब डे बाय डे क्या हुआ, डिफरेंट एजेंसीज़ को इंस्टेब्लिश किया गया दैट दे विल प्रोवाइड दी फंड टू दी पीपल. ओके, सो एडिक्वेटली मीट द नीड ऑफ द रूरल क्रेडिट. रूरल क्रेडिट की जो नीड है उसको फुलफिल करे. Also nationalization of commercial bank in July 1969. Okay, so in 1969,
ओके। 14 कमर्शियल बैंक्स क्या हुए थे, कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे। ओके, इन 1969 14 कमर्शियल बैंक्स क्या हुए थे, नेशनलाइज्ड हुए थे। इन 1980 6 कमर्शियल बैंक्स क्या हुए थे, नेशनलाइज्ड हुए थे। इन विच टोटल कितने बैंक हो गए थे आपके, 20 बैंक्स ऐसे थे जो क्या थे, नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, इन 1969 में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट हैज़ nationalized the 4 commercial banks and in 1980 6 commercial banks को क्या हुआ था, nationalized किया गया था। ओके, इसे ठीक है। अब ये you will prepare the list of all the banks which were nationalized in 1969 and which were nationalized in 1980 and you can also tell the under which committee। ओके, कौन किस कमेटी के अंदर कितने बैंक्स, कौन ऐसे 14 बैंक्स थे जो नेशनलाइज्ड हुए थे और कितने ऐसे बैंक्स हैं जो 1980 में नेशनलाइज्ड हुए थे। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट। इन दैट केस क्या हुआ आपका, in 1980 6 commercial banks were nationalized। okay, 6 commercial banks nationalized हुए which further helped in expanding the role of institutional sources to grant credit। okay, they also play the very important role for providing the grant to the granting the credit to the farmers। okay, some of the important institutions of agriculture credit are, first one is cooperative credit society। okay, there are also some institutional sources which provided the agricultural credit, in which we have to study what is the cooperative credit society। These society advance credit to the farmer at reasonable rate of interest। These contribute nearly 30% of the rural credit। okay, ये क्या होते थे, ये जो these societies होती थी, ये cooperative credit society होती थी, वो farmers को credit provide करती थी at the reasonable rate of interest। मीन जो rate of interest होता था, जो उस पर पे किया जाता था, वो अफोर्डेबल होता था। मीन्स कोई भी नॉर्मल जो फार्मर है वो उसको अफोर्ड कर सकता था। दीज कंट्रीब्यूट 30% ऑफ द रूरल क्रेडिट। रूरल पे जो पीपल क्रेडिट ले रहे थे उसका ये 30% क्या किया, कवर किया। ओके, now these focus on the following objective। credit cooperative societies basically focused on the all these objective to free the farmers from the clutches of the money lender। ठीक है, जो भी फार्मर्स थे उनको फ्री किया, जो मनी लेंडर उनको क्लच करके रखे थे, मीन्स पकड़ के रखे थे, उनके जो एक ट्रैप से क्या किया, उसको निकाला। मीन्स जो ग्रैप्स कर लिया था कि पीपल मनी लेंडर ने क्या कर लिया था, पूरे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, फार्मर्स से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में फार्मर्स को पूरा ये क्या कर लिया था, पूरा ट्रैप में ले लिया था कि पीपल हैव नो वन एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन टेक दी एनी काइंड ऑफ फ्रॉम दी अदर सोर्सेज। इसलिए मनी लेंडर ने क्या कर दिया था, सारे फार्मर्स को क्लच करके रख लिया था, पकड़ के रख लिया था कि पीपल जो रूरल पीपल थे वो कहीं और शिफ्ट ना हो सके। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या हुआ, फार्मर्स क्या हुए, इससे फ्री हो गए फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टू एडवांस क्रेडिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो क्रेडिट प्रोवाइड हो रही थी, क्रेडिट को एडवांस किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी लो, फार्मर्स को बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ा था। टू स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटी ऑल ओवर दी कंट्री, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को ऑल ओवर दी कंट्री में क्या किया गया, उसको स्प्रेड आउट कर दिया गया, फैला दिया गया, प्रोपोगेट किया गया। टू इंश्योर टाइमली एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द रूरल एरिया। मीन्स ऐसा नहीं हो कि उसमें कंटिन्यूटी फंड में ना रहे या टाइमली वो फंड प्रोवाइड ना किया जाए। टाइमली और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड किए गए सो दैट द फार्मर्स आर नाउ एबल टू टेक दी लोन और टेक दी फंड फ्रॉम दी
rural credit cooperative societies. Okay, next one is land development banks. These provide long term credit. The credit is granted against the mortgage of their lands. Okay, बेसिकली ये क्या होते थे, लॉन्ग टर्म क्रेडिट होते थे. ठीक है, इसमें क्या होता था, जो क्रेडिट ग्रांट होता था किस कंडीशन पे, कि जो फार्मर्स होते थे वो अपने लैंड को ही मॉर्गेज कर देते थे. ठीक है, वो अपने लैंड को मॉर्गेज कर देते थे. इन रिटर्न क्या होता था, उन्हें फंड प्रोवाइड किया जाता था. ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर दे प्रोवाइड दी लॉन्ग टर्म क्रेडिट. ओके, लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते थे टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द परचेजिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स, कंस्ट्रक्टिंग परमानेंट स्ट्रक्चर ऑन लैंड. बेसिकली ये क्यों मिलता था कि एग्रीकल्चर में जो इनपुट्स उनके लग रहे हैं उसको परचेज कर सके, एज वेल एज कंस्ट्रक्टिंग परमानेंट स्ट्रक्चर ऑन लैंड, कि परमानेंट जो स्ट्रक्चर उसका प्रिपेयर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है लैंड का, उसके लिए वो फंड ले सकें और वो उस पर इन्वेस्ट कर सकें. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक क्रेडिट. ओके, after the nationalization in 1969, commercial banks played a major role in advancing credit. The objective of the commercial banks are to directly help the farmers by expanding their branches in rural areas, to indirectly help the farmers through agents, to create awareness about the existence of facilities being provided by them through newspaper, radio, television, etc. ओके, जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, आफ्टर डैट कमर्शियल बैंक प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन एडवांसिंग क्रेडिट. क्रेडिट को एडवांस करने में कमर्शियल बैंक क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते थे. और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डायरेक्टली हेल्प द फार्मर्स बाई एक्सपैंडिंग देयर ब्रांचेस इन दी रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ में भी उनके जो ब्रांचेस थे, बैंक्स के जो ब्रांचेस थे, उसको भी क्या किया गया, ओपन अप किया गया, एक्सपैंड किया गया है, जैसे डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प किया जा सके. ओके, नहीं तो फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, सिटी में आना पड़ेगा, फिर वो हेल्प ले सके. इसलिए ब्रांचेस क्या हैं, विलेज एरियाज़ में भी ओपन किए गए, टू इनडायरेक्टली हेल्प द फार्मर्स थ्रू एजेंट्स. ओके, और जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, यू नो वेरी वेल कि हम लोग उसमें भी कमर्शियल बैंक्स में जब पढ़ रहे थे, मनी बैंकिंग में हम लोग पढ़ लिए थे कि इसमें भी एजेंट्स होते हैं. डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू हम लोग फार्मर्स की भी हेल्प की जा रही थी, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैसिलिटीज़. ओके, डिफरेंट जो फार्मर्स थे उनमें अवेयरनेस भी क्रिएट किए जा रही थी कि फैसिलिटीज़, एग्जिस्टेंस ऑफ फैसिलिटीज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय देम थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, एक्सेट्रा. ओके, उनको अवेयरनेस क्रिएट की जा रही थी, प्रोवाइड की जा रही थी अबाउट कि अभी फैसिलिटीज़ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ फैसिलिटीज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय देम, कि बैंक्स क्या करेगी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की करेगी टू प्रोवाइडेड द डिफरेंट काइंड ऑफ फंड फॉर दी फार्मर्स. और वो अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा रही थी, कि न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो, television, etc. Okay, from these sources there is also creating the awareness by the commercial banks that there is also some existence of facilities as well as existence of different kind of funds to the farmers. Okay, they can reach out and take the different kind of facilities as well as some kind of funds also. Now the next one is regional rural bank. ओके, इट वॉज इंस्टेब्लिश्ड इन 1975. 1975 में इंस्टेब्लिश्ड हुआ था. दीज बैंक्स हैव बीन सेटअप टू कवर द गैप इन क्रेडिट स्ट्रक्चर of the available facilities in the rural areas. The main objective are to open the branches in those areas where there are no banking facilities available, to provide credit facilities to the small and marginal farmers. Okay, these banks have been set up to cover the gap in credit structure of the available facilities in the rural areas. Basically इन बैंक को क्यों सेटअप किया गया, कि जो गैप होता था क्रेडिट स्ट्रक्चर, अवेलेबल फैसिलिटीज़, जो क्रेडिट प्रोवाइड करने का जो
स्ट्रक्चर होता था एज वेल एज जो गैप बन गया था कि फैसिलिटीज़ और फंड उनको प्रोवाइड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कि हो सकता है मे बी कमर्शियल बैंक उन विलेज एरिया में क्या ओपन अप ना हो पाए, सेटअप ना हो पाए। तो इन डैट के जो रीजनल रूरल बैंक्स होते थे वो बेसिकली रूरल एरियाज़ में ही सेटअप होते थे, कि जो भी कैपिटल से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड जो गैप बन गया है फार्मर्स और बैंक्स के बीच में, वो क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, और जो फार्मर्स हैं वो ईजिली फंड को अवेल कर सकें। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ओपन द ब्रांचेज इन दोज एरिया वेयर देयर नो बैंकिंग फैसिलिटीज, बेसिकली open the branches in that area where there are no banking facility, where there are no credit cooperative societies, land development banks, commercial banks. In that case, the RRBs, rural regional rural banks, are open in that areas where there are no banking facilities. Next is to provide the credit facilities to small and marginal farmers, basically for to provide the credit, provide the funds, provide the loans to the farmers. Those are too much, those who are the small as well as they are the marginal farmers. Okay, it's all about your today's class.